चलो ये सब कट एंड वी स्टार्ट विद आवर क्लास, ठीक है? So we had just stopped at something called, we wanted to know about the electronic configuration. So again, I'll make the periodic table first, right? And we were interested on the first 20 elements. So if you have your periodic table, keep it with you. So I said that what was our discussion so far, that we are now interested to know something which is known as the electronic configuration. Again, I'm still not at the chapter topic stage. I'm at generic topics as of now, but this is something which is there in your fourth chapter, तो इसको आराम से समझिए. Electronic configuration. Electronic configuration means how electrons are configured in a atom. जैसे आप कहते हो, how are the furnitures configured in my house? The sofa will definitely be in the living room, the bed in the bedroom, the kitchen items, refrigerator will not be in the bathroom. So you configure it along with its configuration. So how are electrons configured? So ये electronic configuration which you now learn, this will be applicable for first 20 elements, and those first 20 elements we will see completely in detail. Okay, first 20 elements, and this is given by Niels Bohr. It's called the Bohr's postulates, which we will learn in fourth chapter, not now. But Niels Bohr is the name of the person. Niels Bohr actually gave how this configuration takes place. Okay, so once you have the nucleus, this is called the nucleus of that particular atom. From the nucleus, we will have different what you call as orbits, but the better word to call it is called as a energy level. Shell भी नहीं बोलेंगे, energy level. बातें सब एक ही है. So what I'm trying to draw is these are all those circular or elliptical orbits. ठीक है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कुछ words जो हम use कर सकते हैं. The very easy way to understand them is orbits. I will say don't use this word. You should use what? You should use shells. No. Even a better word for this would be energy level. Energy level. So every energy level. अब देखो energy level एक word बोल दिया. Suppose this is a school. Grade level. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. That means these are levels. Every level is designated with an amount of energy. ठीक है? And as you go this side, these are called the higher energy level. Higher energy level. मतलब suppose this is the first energy level, second energy level, third, fourth. किसके पास एनर्जी ज्यादा है? फोर्थ के पास ज्यादा है. ठीक है? इसको समझने का एक टेक्निक लेते हैं. Let's try and understand with an easy technique. What is the easy technique? If your electron is in the first energy level, use your common sense. The nucleus is all positively charged, the electron is negatively charged. आपको नहीं लगता यहाँ एकदम पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को? जब किसी को कोई पकड़ के रखता है, क्या वो स्ट्रक्चर स्टेबल है? स्टेबल है, स्टेबल है. एंड स्टेबिलिटी ऑलवेज मींस लेस एनर्जी. अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है तो आप स्टेबल नहीं हो. क्लास 1 का बच्चा ले आओ, बैठाने से बैठेगा नहीं. तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? ही सो एनर्जेटिक, सो एनर्जेटिक. और रात को वही बच्चा तला हुआ पूरी की तरह बिस्तर में सो जाता है. एनर्जी नहीं है पूरा दिन घूम के, है ना? जितना ज्यादा देखो, आपको बस के अगर मैं ऊपर बिठा दूं ना एंड बस चलना शुरू करे, योर पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई. So you have fear to fall down. तो आप बस के नीचे बैठ जाओ जमीन पे, आपको कोई डर नहीं रहता है. ठीक है? So more is the energy, more unstable you are. More unstable means आपका डिसबैलेंस हो जाना बहुत इजी है. When you are sitting near to mama, your energy level is low and you are very much in control. अभी क्या है? You are here between mom and you. ये B tower आ गया है बीच में, तो आप थोड़ा बदमाशी कर सकते हो. Think in a different way. Suppose I want to hit Vakul. I'm his friend. मारना है मेरे को इस बच्चे को. ठीक है? समझो मुझे, केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक ह्यूमन बिहेवियर. बट वकुल क्या चालू है ना, अपने मम्मी के चारों ओर साइकिल मारता रहता है. मैं इसको थप्पड़ मार सकता हूं? नहीं. अगला दिन वो दूसरे शेल में गया तो थोड़ा थोड़ा बी टावर से कभी कभी उसकी मम्मी देख भी लेती है. नॉट इजी. बट अगर वो यहां साइकिल चलाएगा ना, पूरा गोल्डन चांस इसको पीटने का. इसको हम क्या बोलेंगे हायर क्लासेस में? शील्डिंग इफेक्ट. You are getting shielded from the nucleus's force of attraction. ये हम 11 में सीखेंगे. Shielding effect. Shielding means the nucleus wants to pull you, but there are some shields. I want to pull you, but I am not able to pull you because there are some shields. यहाँ पे कोई shielding effect नहीं है. ठीक है? समझ में आया? Higher energy levels. इन energy levels को बेटा हम नेम करते हैं K, L, M, N ऐसे. O तक और जाने की जरूरत नहीं है. कैसे नेम करते हैं? K, L, M, N. ठीक है ना? These are known as shells. So what is the preferred word we will use?
energy levels, right? And here you remember farther from nucleus, so higher is the energy, higher is the energy. मतलब देखो बेटा, जब आप इस घर में रहते हो ना, आपके पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है. जब आप इस घर में रहते हो, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है. जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा एनर्जी है, तो आपकी स्टेबिलिटी उतना ही कम है. समझ में आया? मतलब हमला गिरेगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन में गिरेगा? ये सब में गिरेगा. ऐसे भी आप सोचो, दो देशों में लड़ाई होने से ये नारसिंगी पुलिस स्टेशन से कोई थोड़ी लड़ने जाएगा. कौन लड़ेगा? वहां जो बॉर्डर में बीएसएफ है, आर्म फोर्सेस है, वो लड़ेंगे. अंदर के रेजिमेंट्स भी बाद में. अगर ये वाला लेयर हमारा गिर गया तो ये एक्सपोज होता है. कॉमन सेंस. ठीक है. सो फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस हायर इज द एनर्जी, एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर नेम्ड एज व्हाट बेटा? KLMN. ऐसे हम नेम करते हैं. ठीक है. यहां पे हम एक नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं N. N इज इक्वल टू शेल और एनर्जी लेवल नंबर. शेल और एनर्जी लेवल नंबर, इसको हम कितना बोलेंगे? N इक्वल टू 1. ये क्या हो गया? 2, ये 3, ये 4. समझ में आया? दिस इज N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3, N इक्वल टू 4. एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, क्रॉस क्वेश्चन में राइट नाउ इटसेल्फ. थोड़ा सा टॉपिक टफ है. ठीक है. Stability means, is the structure stable? Stable means I've asked you to sit here. Are you going to sit here or are you going to wander all around? Have you understood? If you have more energy, you will be wandering here and there. Energy is equal to stable. Energy cannot be equal. Energy, these are, just imagine them like grade levels in your school. So when you will be studying about Bohr's postulate means Bohr's, the notes that he had written, he says, which we will cover later, as long as it is energy, electron is in one energy level, it neither loses energy nor gains energy. Can an electron jump? Yes, an electron can jump. When an electron jumps to a higher energy level, it has to absorb energy. When an electron jumps from a higher to lower, it releases energy. समझ में आया? In short, we say electron जो होता है ना, वो न्यूक्लियस का गुलाम है. इज अ स्लेव ऑफ द न्यूक्लियस. इफ यू से सपोज द इलेक्ट्रॉन इज नियर द न्यूक्लियस एंड यू फेल इन लव विथ वन इलेक्ट्रॉन, यू सेड मैं आज इसके साथ डेटिंग में ये लेवल में जाना चाहता हूं. द न्यूक्लियस विल से फर्स्ट पे मी द एनर्जी, इज माय स्लेव. सो इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम these orbits, it has to absorb energy. And if the electron comes down from higher level to lower level, obviously it has to lose energy. When an electron comes from higher level to lower level, the structure is more stable. When the electron goes to the higher level, the structure is unstable. ठीक है? So, हाँ. इनके बियॉन्ड में एनर्जी लेवल, इनके बियॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती है. हम सिर्फ 20 तक देख रहे हैं ना. तो KLMN, और हर एक को हमने नंबर असाइन किया. कैसे बिट्टू नंबर असाइन किया? N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3, N equal to 4. ठीक है. यहां अब हम क्या देख रहे हैं? These are typically, ये समझ लो, यू आर द होटल मैनेजर. ये अलग अलग लेवल्स हैं, आपको रूम अलॉट करना है. किसको? इलेक्ट्रॉन्स को. राइट. अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं? द इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल इज कॉल्ड, पहले उसमें हम सीखेंगे एक 2n² रूल. 2n² मुझे बताता है मैक्सिमम, कुछ नोट मत कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा, आप समझिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट can be accommodated in an energy level. समझते हैं इसको. Now you are the receptionist in a hotel. आपके फर्स्ट फ्लोर में तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स है ना, some double bedroom, some single bedroom. So you have a maximum number of persons you can accommodate. Similarly here also there is a rule. The rule is 2n². 2n² का मतलब क्या है? लिखते हैं पहले वाले k फ्लोर में. k फ्लोर में n की वैल्यू कितनी है बेटा? 1. 2n² करें तो कितना होगा? 2 into 1². तो k में हमारा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है. पर सर हमारा जो भैया आया है ना, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है. हम बोलेंगे बच्चों को इसमें दे दो, आप अगले में मूव कीजिए. Now let's say, tell me in L how much you should have?
8 electrons. So here the max electron. Who has not understood this calculation? Please tell me. The maximum count of electron in an orbit goes by the rule of 2n square, where n is the number associated to each level. So k में कितने मिले? 2. L में how much? 8. Can you tell me in n how much you're getting? 18. So here we will get 18 electrons. n में कितना आएगा? 32. Very good. 2, 8, 18, 32. Right? So let me write some things. Let me write shells, or you can write it as your energy level. Right? Let's write the energy levels. What are the energy levels? Every time this will bother. Okay, what are the energy levels that we saw? K, L, M, N. And let's write max electron. And it follows the rule what? 2n square. Here n is equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, 2, 8, 18, 32. 2 minutes strategic timeout. If you want to note down anything, you can note down. During the time when you are noting down, please don't note down like a crow. You read, you note down, and you find anything that is your heart is not agreeing or you are not fine, please ask me. So far, keep writing and listening to me. So far, I'm not going to narrate anything that you need to write. So far today, we started our discussion with the electronic configuration. We understood what is electronic configuration. Electronic configuration is a methodology by which we understand how electrons are accommodated in various shells or energy levels, or in very simple language, the various orbits. So first, let us understand what are orbits. Orbits, shells, or energy levels are named as KLMN, and they are in the order of alphabetical order. They are far away from the nucleus. Such orbits have been given some numbers called as n equal to 1, 2, 3, 4. And the way we count or we assess the maximum number of electrons is by a formula called 2n square, where 2n square tells me what is the maximum number of electrons for a particular energy level. Say for example K, where n is equal to 1, the maximum number of electrons that I can accommodate is 2 into 1 square, 2. For L, it is 2 into 2 square, which is equal to 8. For M, it is 2 into 3 square, which is 2 into 9, 18. And for N, it is 2 into 4 square, which is 2 into 16, equals to 32. So this tells me as a receptionist, the number of guests I can accommodate on K are 2. ये एक है. अभी रूल से सीख रहे हैं हम. इतना समझ में आया? Does anyone have any question? If not, can I go to the next slide? Okay. Now we understood how many people we can keep in each floor. But still, reception, can I get a window viewing room? You're my best customer. So we'll give you. थोड़ा तो adjustment होता ही रहता है. तो आप वो adjustments देखेंगे. What are the adjustments? So we say, last shell. The last shell. The last shell का एक नाम है. क्या बोलते हैं हम उसको? Presidential suite. The most premium one. जहां से बीच दिखता है एक तरफ और जहां से टाउन राइजिंग सन दिखता है. हमें ना सनराइज, इसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल. इसका एक नाम है. What is the name? Valence shell. The last shell can have only 8 electrons. That means if you are the last shell and the last shell is say the n shell, n में कितने electrons आ सकते हैं? 32. But if n is the last shell, don't be under the assumption that you will accommodate 32. You will stop it at 8. Is that understood? The last shell or the valence shell can have only 8, no matter which shell you are. But there is a small clause out here. Small clause. If अभी मत लिखिए, लिखने का टाइम दूंगा, अभी समझिए. If valence shell is the first shell itself, then max electron is always equal to 2. मैंने क्या बोला? अगर आपका एटम ऐसा है कि उसके पास गरीब होटल है, कितना शेल है उसके पास? एक ही शेल है. कौन सा शेल है? के. तो के में कितना रहता है मैक्सिमम? 2.
और के ही हमारा लास्ट शेल है तो 2। लेकिन हम एक ऐसे होटल है हमारे पास दो शेल है के एल, के में कितने आते हैं 2, एल में कितने 8, और एल ही हमारा लास्ट शेल है तो भी 8। हमारे होटल में इस बार दादाजी ने एक और फ्लोर बनाया के एल एम, एम में कितने आ सकते हैं 18, लेकिन अगर एम हमारा लास्ट शेल है तो कितने आएंगे 8। एंड देन कम्स द नेक्स्ट वन, व्हाट इज इट एन, n can accommodate how many 32, but if you are the last shell you will accommodate only 8। यहां से दो वर्ड पैदा होता है जब हम 8 को देखते हैं ना, इसको अभी से हम बोलेंगे द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट, और इसको हम बोलेंगे ड्यूप्लेट। समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर यू आर एक्चुअली अलॉटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अ पर्टिकुलर शेल, दिमाग में एक चीज ख्याल रहना चाहिए, हमारे होटल में बहुत सारे रूम्स हैं, एवरी टाइम यू कीप ऑन चेकिंग आर यू फ्लाउटिंग ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट, एंड व्हाट इज द रूल? अगर मैं सिंगल शेल हूं तो मेरे पास कितने होने चाहिए 2, और अगर मैं सिंगल से ज्यादा हूं तो मेरे पास कितने होने चाहिए 8 लास्ट शेल में, देयर शुड ऑलवेज बी 8। हु केम लास्ट? बताया था ना, हमेशा पुश करके धीरे से, जस्ट पुश द डोर, जस्ट पुश द डोर, हाँ उंगली लीवर छोड़ दीजिए, नहीं गया, पुश द डोर। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कटक करके साउंड आएगा तभी दरवाजा बंद। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, वेरी गुड। ओके, एक और रूल है हमारे पास, वो रूल ये कहता है कि आप अचानक से किसी होटल का फ्लोर नहीं खोल देंगे। ओके, न्यू शेल्स आर ऑक्यूपाइड वंस इनर शेल्स आर, ये दोबारा और नहीं पढ़ेंगे, हाँ ये यही पढ़ लिया, आर फिल्ड कंप्लीटली। आपको मैनेजमेंट ने बोला है कि जब तक सेकंड फ्लोर पूरा भर ना जाए थर्ड फ्लोर में कस्टमर्स को एंट्री मत दीजिए। बड़ा इजी है, इतना ही रूल याद रखना है। 2n² टेल्स यू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज याद रखना है, फर्स्ट शेल अगर लास्ट शेल है तो ओनली 2, और कोई भी शेल अगर लास्ट शेल बनता है ओनली 8। सो देयर इज अ डुप्लेट ऑक्टेट क्राइटेरिया, एंड देन वी विल आल्सो सी that new shells are occupied once inner shells are completely filled up। कोई महान चीज तो है नहीं, ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, फिर मुझे टाइम दीजिए, मुझे दो चीज बनाने पड़ेंगे आपको समझाने के लिए। हो गया? कैन आई जस्ट चेंज द स्क्रीन? अच्छा बढ़िया। नो, चले तन्वी, अनन्या, चलो चलो, अब मैं कुछ बना रहा हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं फटाक से एक बार पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स का एक कंस्ट्रक्शन, और आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान दीजिए, आप उसमें टाइम पास मत कीजिए, मैं कर लेता हूं, मेरे को फट से हो जाएगा। ओके, सो दिस इज माय ग्रुप 1, ओके, दिस इज माय ग्रुप 2, देन आई कम टू माय ग्रुप 13, दिस इज 13, देन 14, सॉरी, ठीक है, you need not make anything now। अच्छा,
if you have your periodic table in front of you, then please remember this is a portion which is very much truncated. I have not included this portion. Okay, so my groups are, this is my group 1, group 2, this is my group 13, group 14, group 15, group 16, group 17, and group group 18. Is that understood? Okay, this is the portion जहां पे आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मैंने उसको छोटा कर दिया है. Okay, bear with me. So this is my second period. All we are interested is till here, right? Okay, so helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. इनको रहने दीजिए. Okay, and my rest of the elements are hydrogen, helium, ठीक है, हो गया. These are the first 20 elements, right? Parallelly what I am doing, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. Okay. Is it easier to hear? What makes you ask that question, darling? ठीक है, so this is my K shell, L, M, N, and I'm writing and keeping it here. Enjoy. आप सिर्फ enjoy करो. N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3, N equal to 4, and with yellow I'm writing the max count: 2, 8, 18, 32. These are the max counts. ठीक है बच्चा? Okay. And what I'm doing here is I'm now making शॉर्ट तो गिरूंगा, पता नहीं, कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं. ठीक है, so these are my elements in the order of their what? Atomic number. This is the atomic number seriality. So let's say atomic number 1, sorry, so atomic number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, and let's bring one more so that मैं यहाँ पे 8 तक आपको दिखा सकूं. And this is 8, atomic number 8, right? And I'm just filling up the elements now. 1 stands for hydrogen, 2 stands for helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. Fluorine, and इसके बाद है हमारा neon. Okay, fine. Now let us start to see the electronic configuration. Let's start with hydrogen. Hydrogen came to my hotel with how many electrons? 1 electron. And these are my shells which I am opening up. I am the receptionist. First I should open which shell? Only K shell. So K shell is the first shell. How many electrons can it hold? 2 electrons. Hydrogen came with how many? 1. उसको रूम देने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाइड्रोजन को क्या करो साहब, आपके साथ तो कोई टेंशन है ही नहीं, ले लो आप यहाँ पे 1 ले लो. समझ में आया? अच्छा, जब हम हीलियम के पास आए
helium has come with how many electrons? 2 electrons. ठीक है? When helium comes to my hotel, at that time, again, for everyone, the hotel is taken separately. Okay, when helium has come, he has got 2 electrons. Can he be accommodated in the first shell? First shell's maximum capacity is 2. So helium को हमने वो दोनों दे दिया. अच्छा, यहाँ पे आप ये मत सोचना सर आपने ऑलरेडी नाइट्रोजन को एक दे दिया. No. It is, the hotel is like an atom of everybody, right? Have you understood the concept? अब ये मत सोचना था हाइड्रोजन एक ले लिया तो हीलियम comes with 2. झमेला हो गया लिथियम. लिथियम के पास 3 बच्चे हैं, तो लिथियम को हम कैसे अलॉटमेंट देंगे? लिथियम को हम बोलेंगे 2 बच्चे आपके यहां रख लेंगे और 1 बच्चा तो यहां जाना पड़ेगा. ठीक है? उसके बाद बेरिलियम आता है, उसे 4 बच्चे हैं. 4 बच्चे कैसे रखेंगे? 2. समझ में आया? ठीक है. उसके बाद बोरॉन आता है. बोरॉन 5 बच्चा लेके आता है, 2 3. तो मैं कहता हूं यार 3 का समझ के रखा है क्या? आदमी घुसाए जा रहे हो. तुम कहते हो सर 8 तक ले सकता है ना. मैंने तो 3 ही घुसाए हैं, अभी जा सकता है आराम से. अच्छा, यहां पे एक चीज और कर देता हूं. ये जो मेरे शेल्स है ना, कौन से शेल? ये हाइड्रोजन के लिए ये ऑक्युपाई नहीं होगा. क्लियर हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन का कोई मतलब ही नहीं है, इसके इतना बच्चे ही नहीं है. अच्छा, हीलियम के लिए ये वाले ऑक्युपाई होंगे, ऑक्युपाई नहीं होगा. लेकिन इसको ऐसे डिफेज नहीं करता हूं, इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ो. इसको डिफेज करने से बाद में लफड़ा आएगा. सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स कम टू कार्बन. कार्बन आता है कितनों के साथ? 6 बच्चों के साथ. तो कार्बन के 2 बच्चे यहाँ रहेंगे, 4 बच्चे यहाँ रहेंगे. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाइट्रोजन के कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे, 5. इसके बाद कौन आ गया? अच्छा, ऑक्सीजन ठीक था, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी लिख दिया है, पहले इन्हें सुधार लो. सुधारिए. इसको 9 करते हैं, इसको 10 करते हैं. ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ठीक है, आ जाओ. ऑक्सीजन कितने बच्चों के साथ आया? 8 बच्चों के साथ आया. 2 बच्चों को यहाँ बिठाया, उसके बाद 6 बच्चे कहाँ बिठा दिए? यहाँ पे 6 बच्चे बिठा दिए. Tell me online, everyone is able to understand this thing, this workout you are able to understand now? Fine. Then we come to fluorine. Fluorine came with how many kids? 9 kids. तो 9 kids में फ्लोरीन को क्या बोल दिया? 2 बच्चे यहाँ पे आएंगे, 7 बच्चे यहाँ पे आएंगे. अब इनके बाद कौन बाकी रह गया है? नियॉन. अब नियॉन आता है 10 बच्चे लेके. नियॉन को कहता हूं मैं वेरी लकी, आप बहुत लकी हैं. आई एम एबल टू अकोमोडेट यू इन द इकोनॉमी रूम्स. अब नियॉन के बाद कौन आना शुरू करता है? अब उसको हम क्या करते हैं ना, उन एटॉमिक नंबर्स को मैं यहां लिखना शुरू करता हूं. राइट? ठीक है, आई एम ट्राइंग टू राइट दोज एटॉमिक नंबर्स हियर. तो यहां पे तो लिखूंगा नहीं. जरा देखो तो, उसके बाद कौन आता है? लिथियम के बाद सोडियम आता है. सो वी विल हैव इट एग्जैक्टली एट दिस स्टेज. No issues, you will understand, just bear with me. So who are my next people who are coming? Sodium. Sodium lithium, अरे यार, सोडियम लिथियम वाले लाइन में ही है. वहां से देखो, सोडियम is in the lithium line. So this is how much? Sodium. Let me write it with a different ink so that you don't get confused. So this is sodium. यहाँ 10 हो गया तो सोडियम कितने में गया? 11. ये क्लियर हो रहा है? तो I'm just, otherwise I don't have space to draw the entire thing in one go. So I'm drawing it in this manner. ठीक है? Sodium is 11, then comes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 and 18. Let me write the atoms. Sodium. Sodium के बाद बेरिलियम है, तो यहाँ पे कौन आ रहा है? मैग्नीशियम आ रहा है. उसके बाद बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे आर्गन. चिल्ड्रन, हैव यू बीन एबल टू फॉलो दिस? आई हैव जस्ट फिल्ड अप टिल आर्गन, बट आर्गन इज एटॉमिक नंबर हाउ मच? 18, बट वी आर सपोज्ड टू स्टडी टिल 20. 20 में कौन आ जाता है? पोटेशियम एंड कैल्शियम आ जाता है. तो पोटेशियम और कैल्शियम को भी ले आते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होता है. सो let's put potassium here just for your and calcium यहाँ पे. ठीक है? Sorry, try to bear it. Come. Now we are trying to fill for the indigo colored ones. Let's go with the indigos. So up till 10 is clear with you. Then who has come? Sodium आया होटल में.
सोडियम 11 बच्चा लेके आया है, बहुत बड़ा फैमिली है। सोडियम को कैसे बोलेंगे? आपके 2 बच्चे यहां जाएंगे, 8 बच्चे यहां पे जाएंगे और 1 बच्चा यहां पे जाएगा। ये सोडियम है। प्लीज अंडरस्टैंड, द इंडिगो कलर स्टैंड्स फॉर सोडियम। सोडियम के बाद कौन आया? मैग्नीशियम आया। मैग्नीशियम कितने बच्चे लेके आया है? 12 बच्चे। तो उसके 2 बच्चे यहां पे हैं, 8 बच्चे यहां पे हैं, 2 बच्चे यहां पे हैं। समझ में आया? इसके बाद कौन आया है? इसके बाद आया है एल्यूमिनियम आया है। एल्यूमिनियम हैज कम विद 13 किड्स, 2, 8, 3। समझ में आया? इसके बाद कौन आया है? इसके बाद सिलिकॉन आया है। सिलिकॉन आया है विद 14 किड्स, 2, 8, 4। इसके बाद कौन आया है? इसके बाद फास्फोरस आया है, 15 बच्चा लाया है, 2, 8, 5। उसके बाद कौन आया है? सिलिकॉन आया है। सिलिकॉन कितने बच्चे लाया है? 16 बच्चे, 2 बच्चे, 8 बच्चे, 6 बच्चे। फिर क्लोरीन आया, 2 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे। और उसके बाद आर्गन आया, 2 बच्चे, 8 बच्चे, 8 बच्चे। जो मैंने अब तक किया है वो चीज आपको समझ में आया? ठीक है, एक रैंडम एलिमेंट निकाल लेते हैं, रैंडम। लेट्स पिक अप सल्फर। हाउ मेनी किड्स सल्फर हैज? 16। 16 means, see, to understand how 16 means what? 16 means the atomic number of sulfur is 16 and an atom is considered neutral. This 16 is actually the count of protons, right? That means sulfur has got 16 positive charges. To balance these 16 positive charges and make it neutral, how many electrons does sulfur have? 16 electrons. This is atomic number which is representing protons, but this is the way their electrons are filled. Try to understand. Electron count is equal to proton count as long as the atom is neutral. And it is assumed that an atom is neutral. Otherwise तो stability नहीं रहेगा. But हम जानते हैं शादी.com में जो चेहरा है वो असली चेहरा नहीं है। ये लोग ढोंग दिखा रहे हैं कि वी आर ऑल न्यूट्रल। ये कोई न्यूट्रल होता नहीं उतना, लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग देयर मैट्रिमोनियल resume, so we have to show that they are neutral. Have you understood? चलिए अब एक ऐसे एलिमेंट उठा लेते हैं, फास्फोरस। जैसे फास्फोरस has how many electrons? 15 electrons. How many protons? 15 protons. But what we are doing? Electronic configuration. So phosphorus has got 15. It means its 15 electrons are such split that 2 are in the first shell, 8 are in the second shell, and 5. Let's see whether we are obeying laws or not. First shell can have how many electrons? 2. Did we not fill 2? Yes, we filled 2. Second shell can have how many? 8 electrons. We have filled 8 electrons. And what about the third shell? The leftover kids. How many kids were left? 5 kids. How many it can take? 18. 5 बच्चे खुशी खुशी रहेंगे। जरा आराम से दो चीजों को देखिए। यहां पे मैं दो एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स को सर्कल करता हूं, उनकी स्टाइलिश चीजें देखिए। हीलियम, ठीक है, नियॉन और आर्गन, इनके ऊपर जरा नजर डालिए। इनकी पोजीशन यहां ऐसे है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। इनकी खासियत जरा देखिए तो। हीलियम हैज गॉट हाउ मेनी किड्स? हाउ मेनी शेल्स? इज द शेल फुल्ली ऑक्युपाइड? वेरी गुड। जितना रोटी दिया एकदम आराम से खाया। जस्ट गो डाउन टू नियॉन। नियॉन ने कितने शेल्स ऑक्युपाई किए? नियॉन, 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 the green color, 2. What are the 2 shells it occupied? K में कितने इलेक्ट्रॉन है? पूरा भरा है। L में कितने इलेक्ट्रॉन है? भरा है पूरा। बहुत अच्छी बात है। जरा आर्गन पे नजर लगाइए तो। आर्गन पे नजर लगाइए। आर्गन में ये पहले मैं, अच्छा है सामर्थ ने बोला आर्गन पूरा भरा नहीं है। What entered Samarth's head, you know? वो देखा कि इसमें कोई गलती नहीं, हम सीख रहे हैं। आर्गन 3 शेल ऑक्युपाई किया, पहले को तो पूरा भर लिया, दूसरे को भी पूरा, लेकिन तीसरे को सामर्थ को फील हुआ तीसरे में तो 18 आता है और ससुरा सिर्फ 8 घुसा है। पर हमारे पास एक रूल है, अगर आप लास्ट शेल हो तो यू कैन हैव ओनली हाउ मेनी? 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आर्गन पूरा भरा हुआ है? बिल्कुल। यहां से एक थॉट प्रोसेस है, What would you like to say about krypton? जब क्रिप्टन का ऐसा कुछ बनाएंगे जो कि हमारे कोर्स लेवल के काफी ऊपर है, क्रिप्टन का भी लास्ट शेल फुल्ली ऑक्युपाइड है। What about xenon? उसका भी ऑक्युपाइड आएगा।
व्हाट अबाउट रेडन, उसका भी ऑक्यूपाइड आएगा। इन सब में खासियत है कि इनके लास्ट शेल, बेटर वर्ड, वैलेंस शेल आर ऑलवेज फुल्ली ऑक्यूपाइड। हीलियम थोड़ा अलग है बिकॉज द पुअर फेलो कम्स विद अ सिंगल शेल, so he falls under the duplet criteria and others fall under the octet criteria। ये जो परिवार है ना, ये परिवार, ये बहुत ही, this is called the role model family of periodic table। ये क्या है बेटा? the role model family है this particular family। ये periodic table का role model है, और इस role model family को हम बोलेंगे inert gas family, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैसेस। ठीक है, इनर्ट गैस या नोबल गैसेस। इनकी खासियत क्या है? ये नोबल, व्हाट डज इनर्ट वर्ड मीन? अनरिएक्टिव। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको रोब्लॉक्स खिलाओ, मम्मी पढ़ूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। बेटा मैगी खा लो, मैं कार्ब्स जैसी चीजें नहीं खाता हूं। बेटा थोड़ा सा महंगे कपड़े खरीद लो, जारा के कपड़े ना, मम्मा मुझे सिर्फ मैक्स के कपड़े दे दो, मैं इसी में खुश हूं। रोल मॉडल बच्चे, जिसको लास्ट क्लास में मैंने क्या लिखा था? कॉलोनी के अच्छे बच्चे, शर्मा जी का बेटा है ये लोग सब, उसमें ये और आगे है। मैं तो रात को भी सोते सोते भी पढ़ता रहता हूं, समझ में आ रहा है? दे आर द वेरी गुड किड्स, दे आर नोन एज नोबल। अगर ये नोबल है और अनरिएक्टिव है, तो क्या मैं एक वर्ड नहीं लिख सकता हूं दैट दे आर ऑल स्टेबल? Agreed? Then what about the others? The crooks are not stable. They are giving you a face that they are stable, but they are not stable. This is the first thing that should strike your head now. These are all stable. तो इनकी एनर्जी कैसी है? लो। बाकी लोग इन्हें जैसा बनना चाहते हैं। So by now we have understood one thing, that if I say what defines stability, so I will say if you want to be stable, please be like inert gas। Please be like inert gas। क्या बन जाऊं? गैस बन जाऊं क्या? मैं तो सोडियम मेटल हूं। इनर्ट गैस का क्या बनूं? उसके स्वभाव, उसके चरित्र, कैरेक्टर, बिहेवियर। पर सर ये तो एलिमेंट्स है, इनका बिहेवियर क्या? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करो। उसमें क्या है जो तुम में नहीं है? सर उसका लास्ट शेल फुल रहता है। क्या इनका लास्ट शेल फुल है? नहीं। They will always want to fill their last shell. So when I say stable means noble gas, so the measure of something called stability, the measure of stability, the measure of stability is defined by whether your valence shell is full or not. Have you understood this question? If your valence shell is not full, you are not stable. You are not stable. As simple as that. अब इनके साथ क्या कर सकते हैं? ये हमारे रोजमर्रा के बच्चे हैं, हमारे पेबल सिटी बच्चे। ये इतने अच्छे तो होंगे नहीं, पर इनको थोड़े नदी में लेके बहा देंगे। Have you seen in महाभारत? गंगा, her husband was राजा शांतनु, है ना? भीष्म की माता जो है, कितने 6 बच्चे बहा दिए नदी में। Whenever Shantanu was madly in love with Ganga just after seeing, and he said, I want to marry you. She said, I will marry under one condition, you never question what I do. So when the first child is born, she takes it and nadi mein baha deta hai. Shantanu can't say anything. 7 children are thrown into the water. 8 बच्चा को फेंकते ही हाथ पकड़ लेता है, ये मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। And 8th वाला को नहीं फेंकता है। She had a curse. 8th one is Bhishma, जिसको भीष्म पितामह बोलते हैं ना। So Devabrata. The 7 people were all was a curse. So it's similarly like that. कि यहाँ पे हमारा क्या है? Stability का definition क्या है? If you want to be stable, you should have a full electron, but we don't have full. Please don't drown us. We'll do something with you. Have you understood? But one thing we have understood, these fellows are not stable. Tuck, tuck, tuck. Only they are stable. तो यहाँ पे अगर देखें तो कौन देखेंगे? हमारे periodic table में the right column is the inert gas, and everybody will be having a mad run to become this. Did you understand? Wait, we are not yet done. We have not addressed, we have addressed only 18 elements. We are left with 2 more. Don't you think we are left with 2 more? Yes. What are we left with? We are left with potassium and calcium. So there is no more space to write on this side. Okay, potassium, calcium I have written on this side. So I'm going to fill with yellow now. Now look at potassium.
look at potassium. Potassium's atomic number is how much, beta? Potassium's atomic number is 19. Now how do you fill 19 electrons? 2 plus 8 10 plus 8 18, 9 कर दो, लेकिन 9 नहीं कर सकते ना. Why? Because last shell cannot have more than 8. So what does potassium do? भाई साहब आप ना बड़े प्रॉब्लमेटिक कस्टमर हो, आपको मैं यहां 9 तो दे नहीं सकता हूं, बट इन दिस केस ऑल योर किड्स आर स्लीपिंग वेल, बट द प्रॉब्लम इज दिस इज द लास्ट शेल एंड आई कांट एकोमोडेट 9 किड्स, दैट्स अ प्रॉब्लम. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राम सिंह साहब का सामान लेके ऊपर वाले फ्लोर में कमरा दे दो. इसने एक और शेल ऑक्युपाई कर लिया है. समझ में आया? और कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम बोलेगा उनको दिया तो हमारे को भी रूम दो ना. समझ में आया? अब जरा पीरियोडिक टेबल में और नजर मारते हैं. कहां नजर मारते हैं? लेट्स हैव अ क्विक लुक इन द पीरियोडिक टेबल. पे गुड अटेंशन ऑन दिस फैमिली, ग्रुप 1. ग्रुप 1. Group 1 means which are the elements I am asking you to take care of. I am asking you to have a look in these elements. 1 minute. I'm asking you to have a look at hydrogen, lithium, sodium and potassium. यही तो है हमारे ग्रुप 1 में. इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो तो क्या है? हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन means electron in the outermost shell. Hydrogen has got only one shell. How many electrons? 1. Lithium has got 2 shells. How many electrons? 1. Sodium has got 3 shells. Why this? How many electrons? 1. Potassium has got 4 shells. What is the last electron? 1. ये जरा देख, ये आपको ये सिमेट्री नजर आ रहा है? 1. लिथियम का भी 1, सोडियम का भी 1 1. एक चीज हमें समझ में आ गया, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 होता है. जो ग्रुप नंबर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मजेदार चीज देखो, विश्वास नहीं होता है? ग्रुप 2 पे नजर डालिए, जरा देखिए तो. ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. जरा बेरिलियम को देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2, मैग्नीशियम लास्ट इलेक्ट्रॉन 2, कैल्शियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन 2. मजा आ रहा है? लेकिन जब आप 13 से शुरू करते हो ना, 13 से यहां से फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है. यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट होता है ग्रुप नंबर -10. दिस इज ग्रुप नंबर 13. 13 - 10 इज 3. चेक करो. बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3. फिर एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3. बोरॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3. तो फिर कार्बन का कितना आएगा? 4 आना चाहिए. सिलिकॉन का भी 4 आना. देखो पीरियोडिक टेबल कितना सुंदर बनाया हुआ है. कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4. चेंज क्या हो रहा है? कार्बन से सिलिकॉन जाने में एक और शेल ऐड हो रहा है. जहां कार्बन के बच्चे एल शेल तक ऑक्युपाई हो चुके थे, सिलिकॉन के बच्चों को ऑक्युपाई करने के लिए हमें एम शेल खोलना पड़ा. एवरी टाइम यू गो डाउन द पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड इज दिस, ग्रुप्स आर दिस. फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, fourth period. We have got 7 periods in the periodic table. Every time you go down the period, Vakul is cycling far away from his mother. When he was in first period, he is cycling in which orbit? K orbit. मारना मुश्किल है उसको. लेकिन वही पोटेशियम को अगर थप्पड़ मारना है, पोटेशियम कहां साइकिल कर रहा है? देखो तो, पोटेशियम्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन N. मम्मी यहां बैठा है 1 2 3 4 टावर के बाद थप्पड़ मारो उसको. Did you understand the logic? Have you understood this? So if you now take a random group, say let's take group 15. Group 15, what should be the valence electron count? 15 minus 10, 5. Right? In group 15, we got nitrogen. Let's have a quick look at the nitrogen. Valence electron is 5. And similarly, phosphorus also has 5. Let's take the inert gas. Group number 18. 18 minus 10 is 8. 8. तो बोलोगे सर हीलियम के लिए भी 8 होना चाहिए. हाँ, हीलियम इज सिंगल शेल.
So it follows duplet. It does not follow octet. So for single shell stability, अगर आप single shell हो, आपको कितना होना चाहिए? Duplet होना चाहिए. If you are more than single shell, then you become octet. So let's go to neon. Neon को जरा चेक करो तो neon octet पे है. Neon octet. ये 2 8 8 8 पे octet हो गया. Neon के बाद argon को चेक करो 8 पे. समझ में आ रहा है? Yeah, please. You should have a lot of questions now, okay? only has 8 electrons. Last shell can have maximum 8 electrons. Last shell can have maximum 8 electrons. Only नहीं, maximum 8 electrons. इसीलिए तो बच्चा देखो, जब ये पोटेशियम आया ना हमारे होटल में, पोटेशियम को के बच्चों को कितने बच्चे लेके आया पोटेशियम? 19 बच्चे. 2 बच्चे यहाँ बिठाए, 8 यहाँ पे बिठाए, कितने? 10 बच्चे गए. अभी 9 बच्चे बाकी हैं. 9 बच्चों को इसमें हम एकोमोडेट तो कर सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी 18, लेकिन अगर लास्ट शेल है तो सिर्फ 8. तो हमने 9 में से 8 बच्चों को यहां रखा और जो उनका मोनू है ना उसको अलग कमरा दिया. हाँ, वो ट्रांजिशन ग्रुप है, उसमें ये वाला नहीं. ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएबल वैलेंसी होता है, वो आप जाके 11-12 में पढ़ेंगे. यस या श्योर. एक नहीं 1000 क्वेश्चन होने चाहिए आपके. बोलिए. हाँ, नहीं, पीरियोडिक टेबल को यहां मत देखो, पीरियोडिक टेबल यहां देखो. मैं इसी को, आई शुड नॉट हैव रिटन ऑल दीज हियर. I should have written them all serial 20 out here. I didn't have space, so I put them here. Are you understanding? I should have written 1, 2, 3, 4, 5. मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे 20 सीरियल ही लिखना चाहिए था. Or else I should have rolled the screen. ये रोल नहीं होता है, स्लाइड चेंज हो जाएगा तो it will take tedious time. Yeah, now tell your question. Calcium, हाँ. इसमें तो 9 आ सकते हैं, लास्ट शेल नहीं आ सकते हैं, तो 8 ही है. कौन सा? इनका जो M शेल है, एम शेल. हाँ, कैल्शियम के एम शेल में 9. वेरी नाइस क्वेश्चन. आपने कैल्शियम के एन, शी हैज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. शी इज आस्किंग, इन द केस ऑफ कैल्शियम, why didn't you put 9 electrons here and go with 1 more electron out here? Are you understanding? Very nice question. In that case, the last has less than 8. Inner can go. यहां पे एक और रूल है जो 9th में बोलते नहीं है. Penultimate shell. What is penultimate? Ultimate shell कौन सा होता है? Last वाला. Penultimate cannot have more than 8 electrons. ये भी एक रूल है. Penultimate shell. इसीलिए ये 12-20 के बाद ये फेल कर जाएगा. This does not hold. What did I tell you in last class? That there is a separate rule with which we fill electrons. That is the quantum mechanical model, जिसमें हम बोलते हैं Aufbau's principle. Aufbau principle you will learn in grade 11. Then you'll say, why are you teaching the scrap? You have to understand this, then only you will understand that. क्योंकि बोर ने जितना स्टडी किया था ना, सिर्फ हाइड्रोजन एटम लेके स्टडी किया था, उस पे भी इतना मिलाना कम बड़ी बात है क्या? So एक और रूल, there is a small slight rule. Penultimate shell cannot have more than 8 electrons. That is the rule. Otherwise, she is very correct. Why don't you put 9 here and give 1? Very nice. Any other question? तो ये एक एक्सेप्शन है. Any other question? इसलिए 20 के बाद ये फेल है. 20 के बाद हम इसको और नहीं दिखाते हैं. ठीक है? और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया, अच्छे से देखो. See the periodic table, because next I will tell you only one question. We'll talk about an element. You have to, and the element will be in 1 to 20. You have to place which group it is. You should know which group, and you should be immediately be able to say what is its valence electron. So if I'm saying oxygen, oxygen is in which group? Oxygen is in group number 16. Its valence electron should be how much? 16 minus 10, 6. So oxygen has got 6 valence electrons. समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास आने से पहले थोड़ा सा मटर गश्ती देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी के साथ भी शादी करने बोलेगा आप कर लेंगे, नहीं करेंगे ना. There has to be some preference of yours also. So let us take one common example. Okay, let's say जो नमक हम रोज खाते हैं, what we call it as sodium chloride. Is this understood? ये सोडियम क्लोराइड बना होगा किससे? सोडियम और क्लोरीन के मिलन से ये बना होगा. इसका मतलब एक चीज तो सही है, इन दोनों को आपस में शादी करने में कोई
कंप्लेन नहीं है, केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ना है। दे आर एग्रीइंग टू द मैरिज। अब ये एग्री क्यों करता है, मजेदार चीज देखते हैं। लेट्स पिक अप सोडियम। व्हाट इज द सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11. And what is the electronic configuration of sodium? Sodium's electronic configuration is 281. Agreed? Let us look at chlorine. Chlorine का है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. Keep your eyes only on the valence electron. मैंने कहा ना, लड़ाई होने से सिर्फ बीएसएफ और आर्मी लड़ेगी, अंदर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अंदर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को देख के लगता है कि ये अच्छे बच्चे हैं, ये अरेंजमेंट देख के। अच्छे बच्चों की क्राइटेरिया क्या होती है? स्टेबल नहीं, नंबर चाहिए मुझे, 8 होना चाहिए। और अगर सिंगल शेल हो तो अच्छे बच्चे कितने होने चाहिए? 2। क्या ये सिंगल शेल है? नहीं, दे आर ट्रिपल शेल। इनके पास कितने होने चाहिए? 8। 8 तो है नहीं, और घर में खूब मार पड़ता है दोनों को। बनो अपने कॉलोनी का अच्छा बच्चा। जरा वापस चलते हैं, तो ये है सोडियम, ये है क्लोरीन। इनके कॉलोनी का अच्छा बच्चा कौन है? आर्गन। डू यू एग्री? इनके कॉलोनी का अच्छा बच्चा कौन है? इनके कॉलोनी का अच्छा बच्चा है आर्गन। तो हमारा क्लोरीन क्या चाहेगा, सोडियम क्या चाहेगा? मैं भी आर्गन बन जाऊं। लेकिन आर्गन बनने के लिए देखो तो क्या करना पड़ेगा? आर्गन बनने के लिए उसको 288 बनना पड़ेगा। उसे 7 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर? इसको अगर आर्गन बनना पड़ेगा तो इसको 288, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, when do you become friends in politics? In politics we become friends only when we have common interests. Otherwise no one is a friend in politics. Our common interest is both of one want to become like argon. Both of one want to become like argon. Do you agree? So this fellow to become argon needs 7 electrons. So there he has to find someone who can give him how many? 7 electrons. अब केमिस्ट्री में अगर कोई आपको इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो आपको मैक्स इलेक्ट्रॉन कितना देगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये भी एक सीखेंगे, अभी धीरे धीरे सीखेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन देगा? मैक्सिमम 3, नॉट 4। जो दे रहा है ना, सपोज यू आर द पर्सन, you need electron. That means how much can you gain? I can gain only 3 electrons. And I am the person, I can give electron. In this case, I am a donor. How much can I donate? अगर इसने 3 लिया है तो किसी ने 3 दिया होगा ना, तो I can donate either 3 electrons or I can take 3 electrons. Have you understood? Can I donate 1 electron? Yes. Can I donate 2 electron? Yes. Can I donate 3 electron? Yes. Can I donate 4? Shut up. Can I accept 1? Yes. Can I accept 2? Yes. Can I accept 3? Yes. Can I accept 4? Shut up. अब सोडियम का प्रॉब्लम देखो, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम बोलेंगे भाई साहब तन्ने ना मिलेगा, 7 देने वाला कोई नहीं है तुम्हारे पास। सर फिर 5 दे दो, 6 दे दो, क्या लाभ है? तुम्हें तो 7 चाहिए, 5-6 देके क्या होगा? तो क्या मेरी कभी शादी नहीं हो सकती है? मेरी किस्मत इतनी फूटी है? तो फिर कोई आके कहता है एक आइडिया है तुम्हें शादी करवाने का, बड़ा बढ़िया आइडिया है, तुम अपना ये बच्चा को किडनैप करवा लो, तुम अपने इस बच्चे को किडनैप करवा लो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है? 2-8। और वापस चलते हैं, क्या 2-8 में कोई अच्छा बच्चा है? नियॉन है। तुम अपने कॉलोनी के अच्छे बच्चे नहीं बन सकते हो, पर पिछले वाले कॉलोनी के अच्छे बच्चे बन सकते हो। मजा देखो केमिस्ट्री का। तो ये कहता है, यानी कि एक बच्चा क्या करे? बोले गंगा मैया में बहा दो इस बच्चे को, ठीक है, एक बच्चा बहा दो गंगा मैया में। कहता है ठीक है, हम बहा देते हैं एक बच्चे को। सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने अपना एक बच्चा बहा दिया। सोडियम था न्यूट्रल, एक नेगेटिव निकल गया तो एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गया। अभी आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कैलकुलेशन? सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा पैदा कर लेता है। क्या हम इसे अभी सोडियम बोलेंगे? मेरा सर कहता था कलंकित हो गया, इसको सोडियम नहीं बोलेंगे, इसका स्पेशल नाम है, इसका नाम है सोडियम आयन। So we learn a new thing called ion. What is an ion? An ion is an entity formed after you lose an electron.
आर यू स्टेबल? नो, यू आर जस्ट थियोरेटिकली स्टेबल. आत्मा जैसा है, जस्ट मृत्यु हुआ है, फ्रेश. अभी आत्मा भटक रहा है और शास्त्र कहता है आत्मा एक और जन्म ले लेगा, लेना ही पड़ेगा उसको, अभी ये जस्ट भटक रहा है. अब जरा क्लोरीन को देखते हैं. क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक. क्लोरीन कहता है मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को मालपुए की तरह खा लेता हूं, गजब करके. क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव खा लिया. तो क्लोरीन का इक्वेशन देखते हैं. क्लोरीन था क्लोरीन, क्लोरीन था क्लोरीन, खा लिया एक इलेक्ट्रॉन, खा लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा. क्लोरीन बन गया, क्या बन गया? क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन. अब थोड़ी देर के लिए देखो, एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये क्या बन गया? ये कुछ ऐसा बन गया. देखो तो ये बन गया. अब हम बन गए हैं क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 2, 8, 8. We are looking like argon now. And once you became sodium ion, how many electrons you have? 2, 8. Are looking like neon. हाँ, क्लोरीन नेगेटिव होगा. सॉरी बिट्टू, आई एम वेरी सॉरी. क्लोरीन नेगेटिव होगा. ठीक है, क्लोरीन. ठीक है. अब जरा आप इस पे नजर डालिए, और किस पे नजर डालना है? इस पे. 1 positive, 1 negative. Does opposite charges attract each other? Yes. मैं आत्मा तू आत्मा एक साथ रहे तो शरीर. NaCl. Are we stable? Super stable. Super stable. नमक को नमक करके रख दो, कुछ नहीं होता है. तवे में तल दो, कुछ भी नहीं होता है. नमक नमक ही रहता है. सुपर स्टेबल. क्योंकि एकदम करेक्ट. somebody's मोबाइल इज बीपिंग. हाँ, एग्जैक्टली आदान प्रदान हो गया है. there is a direct transfer of 1 electron from sodium to this. have you understood? शादी बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन जैसे इनको तोड़ोगे नहीं हो सकता है. now do you understand why sodium and chlorine will combine? Sodium and chlorine combines because by combining they are individually able to attain inert gas electronic configuration. So whenever we think about, जैसे थर्ड चैप्टर में हम बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रेडिक्ट करेंगे, क्या ये कंपाउंड बनता है. So what should be your predicting hinge? You should first try to think, क्या ये दोनों अनस्टेबल है? स्टेबल है तो प्रोडक्टिव फॉर्म नहीं करेगा. Now I'm asking you a question. Will helium ever combine with argon? Never. helium वाला कोई काम ही नहीं है. सब है मेरे पास, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, पैसा, जो बोलो. आर्गन बोलता है मेरे पास भी सब है, जरूरत ही नहीं है मुझे तुम्हारी, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है. इज दिस स्मॉल थिंग अंडरस्टूड? बट इफ यू लुक एट अ सोडियम एंड अ सोडियम, बड़े मजेदार चीज. सोडियम को देखो. सोडियम कहता है सोडियम विल बी कंबाइन. ये सोडियम कहता है यार मेरा तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, ले जा. वो सोडियम भी कहता है मेरा भी ले जा. इज देयर अ कॉमन इंटरेस्ट? नो. But will the sodium combine with fluorine? Yes. Look at fluorine's electronic configuration, group 17, 7. Yes. So now one question comes, ऐसे इसको और डिस्कस करेंगे. Just give me 2 minutes. If you look at a sodium is 281. So a sodium always will lose an electron and will become sodium. And what will it become? 2,8. ये हमारे कपूर खानदान की एक बच्ची है. इसी खानदान का एक और बच्चा उठाते हैं, लिथियम. हमारे चैनल में एक शॉर्ट्स भी है ऐसे. लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,1. बड़ा इंटरेस्टिंग है लिथियम के केस में. क्या ये अच्छा बच्चा है? इसके कॉलोनी का अच्छा बच्चा जरा देखते हैं तो. लिथियम के कॉलोनी का अच्छा बच्चा, लिथियम के कॉलोनी का अच्छा बच्चा इज नॉट लिथियम, नियॉन है. 2,8 होना चाहिए उसको. भाई बड़ा प्रॉब्लम है. लिथियम को क्या चाहिए? 2,8. इसको भी 7. सेम रहेगा ना, ग्रुप नंबर इज सेम. इफ सोडियम नीड्स 7, लिथियम विल आल्सो नीड 7. पोटेशियम विल आल्सो नीड 7. रुबिडियम विल आल्सो नीड 7. सीजियम विल आल्सो नीड 7. फ्रांसियम will also need, because all of them have got valence electron 1. The group number tells me what is my valence electron up to group 1 and group 2. 13 onwards, it is 10 minus group number minus 10. So this fellow wants 7 electron. Anyone will give him?
नो. So this fellow says, अरे उस दिन देखा सोडियम ने एक बच्चे का गला घोट दिया, मैं भी बन जाता हूं कातिल अम्मा और मैं भी एक बच्चे का गला घोट देता हूं. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या है? 2. 2 means how many electrons now with lithium? Lithium nahi, this is lithium ion. This is lithium ion. How many electrons are with it? 2. How many shells do we need? 1. 1 shell का stability criteria क्या है? Duplet. Duplet बन गया ना? ससुरा स्टेबल है. 1 minute. ससुरा स्टेबल है. सर आप कैसे कह देते हो ससुरा स्टेबल है? लिथियम अपने कॉलोनी का अच्छा बच्चा नहीं बन पाया, लेकिन ऊपर के कॉलोनी का अच्छा बच्चा बन गया हीलियम. मजा आया? हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. डुप्लेट. अब लिथियम वाज ऑक्युपाइंग 2 शेल्स. कहां गया? 2 and 1. आपने इसको मरवा दिया, एक शेल में खुश है. राइट? कैन लिथियम देन पेयर अप विथ क्लोरीन? 100%. जबरदस्त शादी. लिथियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्लोरीन लिथियम को देखते ही बोलता है क्या पता है? क्लोरीन जैसे ही लिथियम को देखता है, उस क्लोरीन को लिथियम नहीं दिख रहा है, ये देखते ही मिल गया मेरे को, इसको खाएगा. और लिथियम के साथ मैं जन्म जन्म से आपके साथ बंधी हुई हूं, आप सिर्फ मुझे एटीएम कार्ड देते रहिए और मैं समझ में आया? मजा आया आपको? ठीक है. नाउ योर क्वेश्चन. बकुल. Maximum of 3 electrons can be gained or given. हाँ. So, in the case of lithium, If you give 3 electrons, so let's give it 3 more electrons. How many does it get? 2, 4. 3 elements. What if 2 elements can give 3? ऐसा नहीं होता है. Those elements also have to get satisfied. No, I always said friendship is with some mutual interest. When chlorine is coming and marrying lithium ion, chloride ion, it is also getting 2, 8, 8, and this fellow is 2. You mean to say that you want to buy a car and I'm here and I'll just give you the money? What is my interest? What am I getting? No, sir, every morning you open the curtains and you'll see me driving the car. That's such a soothing vision for you. What? मेरे को interest दे, कुछ दे. Why will I give you the money? Are you understanding? Lithium देगा तो उसको भी. तो आज हमने पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखा. अगले क्लास में हम थोड़े से कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशंस को देखेंगे. ठीक है. और हम बात करेंगे अगले क्लास में ऑन टॉपिक्स लाइक वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी. द लास्ट पार्ट वाज जस्ट अ डिस्कशन. What I want you to be very perfect after today's class is the first 20 elements. How are they in which period? And what is their electronic configuration? What is their valence electron count? How to find valence electron with the basis of group number? बस इतना. ये शादी पे आज आप ध्यान मत दो, इसको और एक क्लास इसी पे होगा, अगले क्लास में करेंगे. टाइम है हमारे पास. ये सीख लिया ना, योर कॉन्सेप्ट विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग, यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट. नथिंग यू हैव टू रेक्टिफाई. सब अपने आप होता रहेगा. ठीक है. चलिए, थैंक यू देन. हाँ प्लीज. एक मिनट, जब कोई क्वेश्चन पूछता है प्लीज डोंट क्लोज. कुछ मर नहीं जाओगे. सुन लो ना इसकी क्वेश्चन, शायद आपका है. ऑक्सीजन एक एटम में स्टेबल नहीं हो सकता है क्योंकि एक ऑक्सीजन के एटम में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. 8 कर दो तो स्टेबल हो जाएगा मैडम. O2 कैसे स्टेबल होता है? 1 मिनट, आज उसको रिपोर्ट डिस्कस नहीं करेंगे, पर आपको जस्ट समझा देते हैं. ये एक ऑक्सीजन है, इसके आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर. ये आप 10 में सीखते हो. ठीक है. इसको कितना चाहिए? 8 चाहिए. एक 2 और ऑक्सीजन लेके आया. इसके पास कितने हैं आउटर इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है ना. अब फ्रेंडशिप होता है म्यूचुअल इंटरेस्ट में. इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. इसको भी 2. तो यहां आपने लड़कियों जैसी बातें हो जाती है. लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स शेयर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर करेगा, इसको कोवैलेंसी बोलते हैं. अब इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये भी उसका है ना, शेयर हो गया. वो चाहिए कितने? 8. लेट्स शेयर वन मोर पेयर. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड.
अब जरा इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गिनिए, पहले के 6, 7, 8, इसका गिनो, पहले के 6, 7, 8, ये हो गया शेयर्ड पेयर। लेकिन शेयरिंग बॉन्ड्स वीक होते हैं। मैं और अनन्या एक स्केच पेन शेयर करते हैं, फिर हमारे अंदर बुरे ख्याल आते हैं, हर रोज स्केच पेन वो क्यों अपने घर ले जाती है, मैं क्यों नहीं रख सकता हूं? होता है ना ये लड़ाई। जॉइंट फैमिली में दोनों भाई बहुत अच्छे, दोनों की शादी हो गई, रात को रूम लॉक होने के बाद एक का पत्नी कहता है हमेशा केबल के पैसे आप ही क्यों देते हो, उनको भी तो, देवर जी को भी तो कुछ खर्चे हैं ना घर के, तेल आप ही क्यों लाते हो, चलो हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, अलग घर। यही तो स्टोरी है हर घर में। लेकिन सोडियम क्लोराइड के केस में क्या था, मैंने लिख के दिया आई हियर बाई सेल माई इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, क्लोरीन कहता है आई हियर बाई पे द मनी टू सोडियम, फ्रॉम टुडे यू हैव नो क्लेम ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, आई हैव सोल्ड दिस पेन टू हर, कैन आई अनस दिस पेन, नो, शी हैज पेड मी, ओनरशिप डायरेक्टली विथ हर। शेयरिंग वेयरिंग होता नहीं है, तो ये भी एक तरह का बॉन्ड है, ये नॉन मेटल्स में दिखता है। इसीलिए अगर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आप शेयर करोगे ना, क्लोरीन के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, एक पेयर शेयर कर देता है। इसलिए क्लोरीन गैस आपको Cl2 दिखता है, और वो है ClCl सिंगल बॉन्ड, ये है O2। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी शेयर्ड, 5 6 7 8। अब समझ में आया? ये सब हम अगले क्लास में करेंगे, राइट? चलिए आज का क्लास यहां रखते हैं, बच्चे काफी बोर हो चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं,